Welcome back. In the second inning is here. It's a chase call for rising star Shangas here. And but support Sale today in the morning won the toss, decided to bat first, and they have posted 162 runs target to the opponents here. And this is going to be the big match once again. Munib Lefty, a very promising batsman from South Kashmir, hailing from district Anantnag, is at the crease and he's at the non-strikers end. And on the strike, this time the batsman flicks the ball. Ball is going down the leg here. Fielder comes from the deep fine leg region. Until he returns ball back, batsmen have all the time to have a run. Here a big star of the Kashmir Valley is playing from South Kashmir district Anantnag. That is Munib Lefty, a promising batsman. He should hold his nerves. He has played some glamorous cricketing shots through offside. Let's watch how he will be anticipating the bowlers. And this is going to be a very, very big match. And But Support Sale won the toss and they have given target of 162 runs to the opponents here. Bowled him, dislodged the stumps, and we were waiting for that. Should not happen, but promising batsman has been sent back to the dugout. And here the first wicket is gone. This is a very, very big blow for rising star Shangas. Rising star Shangas are in a chase call here. It is 13. Over number second is in progress. And big wicket is gone. He's walking back to the dugout now. Munib Lefty, a talented batsman, left-handed, a very, very smart cricketer. He has been sent back to the dugout and he was bowled by the bowler. Amir was the bowler there and Amir gets his first victim here. The partnership was of 13 runs. First wicket is gone. It is one wicket down. Last ball to go in the second over here. I welcome every person on Kashmir Supports Watch here. This is going to be the belt of a second innings here at SNW Memorial Ground, 17th edition. The journey was started in 2004 of SNW and this is the 17th edition in a row. What a terrific job is being displayed by Shaheen Supports Association under the presidentship of Abdul Hasib Dar and Vice President General Mr. Muhammad Rafi, General Secretary Gulzar Sahab, and Chief Advisor of the association Mr. Haji Muhammad Rafi Pari Sahab. He's also watching the match from Abdul Wahid stand. Meanwhile, ball has been driven through the offside. Fielder comes, returns the ball, doesn't allow the batsman to go for a run. It is 13 of the end of second over here. The current run rate is 7.09 and the required run rate has a little bit mounted up. That is 8.28. Another batsman walks down the middle. It is Farooq and Amir are at the crease. Amir Ahmed has bowled from Batspur Sale 1 over 1 run he has conceded and he has taken a wicket. Taufiq Mallah 1 over 12 runs and he has not got any wicket so far. Taufiq Mallah has been once again brought into the attack, the captain of the side. Third over will be started now. There comes the bowler Taufiq Mallah, right arm over the stumps. Cuts the ball beautifully, finds the placement. What a shot! Terrific shot from the batsman. He has beaten the cordon through the offside. Three fielders were beaten. Backward of point and straightish point, and he has found the place. Ball is racing to the fans for 4. What a shot! Score is now 17 for the loss of 1 wicket. Amir Firdos has played a glorious shot through the offside. The crowd is mounting up in the SNW Memorial Ground. We are back live in the second innings here and we are enjoying the match. Taufiq goes to the top of his bowling mark. He has been introduced in the very third over here. Third over is in progress. Good ball. Shorter in length but doesn't allow much more weight to the batsman. There is no run on the board. Score stays on 17 for the loss of 1 wicket. Now, apart from a slip, backward of point,
Oh, what a shot! That is a straight punch. It is all the way on the side screen for a magnificent six. This is a wonderful blow from the batsman. Watch it, the fuller one, and just sends the ball in style on the side screen for a big six. This is a very smart cricket from Amir Firdaus from South Kashmir, playing with rising star Shangas. Shorter one leaves the ball towards the wicket-keeper and there is no run. This is going to be a very big match now, as rising star Shangas is charging down the line here. They are chasing the target of 162 runs here. Meanwhile, bowler comes and leaves to the wicket-keeper and no run results. The ball was wide outside the off stump, not much more wide. It was around 2 inches away from the off stump and there is no run, no change in the fielding. A big cordon through the offside. Good delivery and just punches the ball for defenders there. Defensive shot and it's end of a third over. It's 23 on the board for the loss of 1 wicket here. The current run rate is 8.12. It has come down from 8.12 to now 7.67 and the required run rate is 8.18. Today there's a big match at CWAP Stadium, Palalan. Sajad, this is a match at SNW Memorial Ground, 3 kilometers away from Hyderabad and 5 kilometers away from main town Patan. SNW Memorial Ground, it has already given some great surprises to the audience, because this is a kind of tournament which remains always spellbound, and some big surprises already have been anticipated in the ground, like PCC Patan. They have been knocked out. Friends Motors Narwal, they too have been knocked out of the competition. And meanwhile the match is going on. 23 on the board. Fuller one and he wants to drive the ball, takes an edge, maybe it will be protected there. Yes, he does well. Good fielding in the deep of third man here. Well protection there. 2 fielders are staying outside the 30-yard circle here in the power play here. But one more run on the taily now. Let's have a look. 1 or 2 runs have been taken. 2 runs on the board. It's 25 for the loss of 1 wicket. 4th over is in progress. Farooq will face Amir. Oh, that's a wonderful delivery. Beautifully bowled. Spectacular ball by Amir. No run results. Score stays on 75. Over number 4th is in progress. Have a look on the fielding now. 2 slips have been placed in form of Tawfiq and Ashik. There is a deep gully, point, cover, mid-off. This is the fielding through the offside. And striking on the pad is bat and a pad. That is why it has been denied. Oh, there's a chance of a run out. Shy at the batsman's side and another shy at the non-strikers, and they are cruising it. They are throwing the throws like blades there, and what a presence of mind by But Support Sale in the ground here. It's 25 for the loss of 1 wicket. 3rd ball to go in over number 4th now. It's a beautiful sunshine once again. 31 degrees Celsius temperature. It's quite hot and it's quite humid. Comes down the track and plays a sensible shot for a single. Bit of a fumble there. That has given the opportunity to the batsman here to have 1 more run to the taily. Score goes up to now 226. 1 wicket down. Over number 4th is in progress now. The current run rate is 7.09 and the required run rate is 8.33. Meanwhile, bowler goes to the top of his bowling mark, Amir. Right arm out the stumps from the school end. Comes down the track and wants to send it over the long on, but ball goes towards the deep sky leg fence. There is no protection. Ball is racing to the fence for 4. They are charging on the bowlers of But Support Sale here. The intentions are quite clear from both the batsmen from Rising Star Shangas. Amir Firdaus has faced 11 balls and he has scored 15 runs with the help of 1 boundary and 2 sixes. 2 boundaries and a 6 at the strike rate of 136.36. Meanwhile, Amir comes last time in this over to Amir Firdaus. Oh, good delivery. Slower one. Beat the batsman. It was on the pads. Height was the issue and ball was missing the leg stump as well. And it marked at the end of now another over. 4 overs gone. It is 30 on the board for the loss of 1 wicket. A big wicket has been taken
by Tawfiq Malla. In fact, by Amir, he has taken a wicket of Munib lefty. He is a very, very big star from South Kashmir, hailing from district Anantnag. He has played with some great clubs of the Kashmir, but at the moment he has been sent back to the dugout. I am here with another commentator. It's Abid from Wanigam. Abid, you have been doing the commentary for the first time from SNW ground. So how is the feeling? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है नवाज शरीफ मुझे। आज मैं काफ़ी 5-6 साल के बाद फिर से कमेंट्री के फ़राज़ अंजाम दे रहा हूँ। तो इस वक्त हम खुशामदीद करते हैं अपने फेसबुक लाइव कश्मीर वॉच पर देखने वाले दर्शकों का। अभी तक का सूरत हाल जो है, राइजिंग स्टार शांगस अपने लक्ष्य का पीछे करते हुए 30 रन उन्होंने बनाए हैं। एक विकेट उसमें जो कि एक जारिहाना बैट्समैन मुनीब लेफ्टी के नाम से जिसकी जिक्र अभी भी मोहम्मद शफी कर रहे थे, अनंतनाग का एक सेंसेशनल बैट्समैन, एक आला बैट्समैन, लेकिन आज कुछ न कर सका। ये 30 रन अभी 4 ओवर के इख्तिताम पर। बट सपोर्ट्स हेल की अच्छी यहाँ पर कारकर्दगी, कुछ फील्डिंग में तब्दीली, बॉलिंग का मोर्चा संभालते हुए बॉलर आए, पहली गेंद को दिफाई अंदाज से खेला, वहाँ पर एक अच्छे रन का प्रयास और रन लिया, वहाँ पर थ्रो किया था बॉलर ने, लेकिन फील्डर ने बैट्समैन ने तब तक अपना रन पूरा किया। इस एक रन की मदद के साथ राइजिंग स्टार शांगस का स्कोर 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जो देर से जुड़े हैं हमारे फेसबुक लाइव पर, उनको मैं बताते चलूँ कि आज SNW मेमोरियल ग्राउंड में बट सपोर्ट्स हेल बमुकाबला राइजिंग स्टार शांगस के माबाइन अभी मैच जारी। पहले इनिंग्स में बट सपोर्ट्स हेल ने 162 रन का टारगेट दिया है। अभी तक का सूरत हाल ये है, 31 रन बनाए हैं राइजिंग स्टार शांगस ने, जिसमें आमिर फिरदौस ने 15 रन और फारूक अहमद ने 4 रन बनाए हैं। अशफाक अपने बॉलिंग में चले, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद को दिफाई अंदाज से खेला सुकेल लेग की जानिब, वहाँ पर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन लेने का मौका था, 1 रन लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो इस 1 रन की मदद के साथ शाइनिंग स्टार शांगस का स्कोर 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अशफाक अपने छोटे से रनअप के साथ लॉन्ग ऑफ को बाहर बुलाया है बॉलर ने। अच्छी गेंद को दिफाई अंदाज में खेला, मिड ऑन की जानिब, वहां पर रन आउट होने का खतरा और अपील, लेकिन अंपायर ने नकारा। वहां पर एक अच्छा एफर्ट था वहां पर फील्डर और बॉलर का, लेकिन तब तक बैट्समैन अपने क्रीज में पहुंचे थे। तो इस 1 रन की मदद के साथ राइजिंग स्टार शांगस का स्कोर 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5वीं गेंद करेंगे अपनी बॉलिंग की अशफाक। मलिक फैसल थैंक यू वेरी मच, मोहम्मद आसिफ थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक शेयर करते जाइए कश्मीर सपोर्ट्स वॉच को। फिर एक मरतबा 5वीं बार अशफाक छोटे से रनअप के साथ स्कूल एंड से चले, आहिस्ता आहिस्ता अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद को निकाल दिया वहां पर पॉइंट की जानिब, वहां पर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, रन लेने का कोई मौका नहीं, स्कोर बदस्तूर 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चले अशफाक आखिरी मरतबा, अच्छी गेंद नीचे रहते हुए गेंद को निकाला, वहां पर मिड ऑफ की जानिब, वहां पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग, तब तक बैट्समैनों ने 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन की मदद के साथ बट सपोर्ट्स हेल का राइजिंग स्टार शांगस का स्कोर 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। थैंक यू वेरी मच मलिक फैसल, शुक्रिया समीर अहमद, शुक्रिया आशु आसिफ, शुक्रिया आशु आसिफ, शुक्रिया आशिक क्या आसिफ, शुक्रिया आसिफ, शुक्रिया शेख जायद।
आमिर लगातार तीसरी मर्तबा तीसरा ओवर करने जा रहे हैं आमिर। स्कूल एंड से चले आहिस्ता आहिस्ता। अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की शॉर्ट पिच गेंद, वहां पर एज लगने का चांस था, लेकिन एक अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा वहां पर आमिर के जानिब। एक अच्छे टैलेंटेड प्लेयर है आमिर। हल्का सा रन पे उनका। आमिर दूसरी मर्तबा। आमिर चले। थैंक यू वेरी मच इशफाक लून। इशफाक लून वानीगाम से माय फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। आमिर चले आहिस्ता आहिस्ता। अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की शॉर्ट पिच गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में। बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। स्कोर बदस्तूर 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक 162 रन का पीछा करते हुए अभी राइजिंग स्टार शांगस की टीम 35 रन पर एक खिलाड़ी उनका पैवेलियन लौट चुका है। आमिर चले आहिस्ता आहिस्ता। अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद, गेंद को धकेल दिया है सेकंड स्लिप की जानिब। 1 रन लेने का मौका था, 1 रन लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो मोहम्मद शफी, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर अभी जो गेम चल रही है, सिंगल्स डबल्स का कैसा रोल रहेगा? Singles and doubles are every time playing a crucial role in game of 2020 format here. Meanwhile, the batsman on strike is Amir Firdaus. He has scored already 17 runs out of 14 balls. Ball comes right on the stumps. Amir drives the ball handsomely and finds the gap, and the pace of the shot was a bit slower, and fielder is charging on it and returns ball back to the wicket keeper. In fact, to the bowler, and he could not collect the ball. But 2 more runs to the tail. His score moves up to 38 for the loss of 1 wicket. This is a very, very strong team of Shangas Rising Star Anantnag. Once again, what a shot! What a terrific shot! You can't have a better shot than this one to entertain crowd. Absolutely smoked it and uses his muscles all the way. One bounce into the fence for 4. Mudassir, thank you so much. Ashu Asif is a very, very talented player from Shine Supports watching the match. Thank you so much. Chief Advisor, Shine Supports Association has been here throughout the day and watching the beautiful match of Rising Star Shangas versus Bursport Sale. Once again, a short pitch delivery. Batsman just takes this ball from the off stumps and plays it towards the bowler side, and well fielded in the follow through. No run result. Score is 42 for the loss of 1 wicket. 6 overs gone, and the current run rate is 7. The required run rate is 8.57. So both the teams, they need to pull out all the stops if they want to win a match here. And at the moment, what's more important for Bursport Sale, that they have to hit the nail on their head to break their partnership here, because the partnership is mounting up. It is a partnership of 29 runs between Amir Firdaus and Farooq. Amir Firdaus is looking in a good touch. He has faced 17 balls, 23 runs, and he has struck 3 glorious boundaries, and with a wonderful 6 as well. Amir Firdaus' strike rate is 136. Farooq Ahmed has faced 12 balls and he has just scored 7 runs, and his strike rate is 58. He has yet to open his account in form of boundaries and a 6. So Farooq has not struck any boundaries so far. The game looks quite nice, pleasant atmosphere in the ground, and Bursport Sale are in a search of a wicket here, especially the wicket of Amir, who is not out on 23 runs. Now Farooq will face the first ball of 7th over. Power fully comes to an end now. The restrictions are eliminated now in the second innings now, as there will be 5 fielders at the catching position now. Have a look on the fielder with a straight point, deep point, I would say. Long off, long on. We have deep wicket, and it's popping in the air. Catch the call for the first slip here, and yes, dropped. It was a dolly for Tawfiq here. He could not make the position. He ran
He had a cover, a bit of a distance there, but finally and eventually result was a drop catch. A life has been given to Farouk there. Sharik Yusuf, Daruyub, thank you so much for joining me on Kashmir Sports Watch. You are watching live streaming show from SNW Memorial Ground. Meanwhile, cuts in and cuts it beautifully. Protection in the deep. He comes in, returns ball back to the wicketkeeper fielder. Well fielded at the end. One more run to the tally now. Score goes up to now 43 for the loss of 1 wicket. Over number 7th is in progress. Farouk just guided the ball for a single, shy at the non-strikers end. But batsman had already made his line. There is one more run to the tally, 44 for the loss of 1 wicket. The current run rate is 6.92 and the required run rate is 8.67. Meanwhile, ball comes. Ishfaq. Oh, that is a big gamble there. It should have been. Oh God, what happened in the middle of the stumps there? Middle of the wickets. Greatly anticipated by Bat Sports Hale here. They were waiting to get a breakthrough here, and finally they have got a breakthrough here. And there has been a misunderstanding between the two batsmen out here in the middle of the ground. The non-strikers and batsmen denied to take a run here. He could not anticipate to be batsman here, and there was not any sort of chances to get a run. Not a good call from the batsman. This is his own mistake. Now another batsman is walking down the middle here, and another one is down here. 45 for the loss of 2 wickets. 7th over is in progress. शुक्रिया मोहम्मद शफी। कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर ये रन लेने की। एक अच्छी वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कीपर और फील्डर की। रन आउट का एक आसान सा मौका जिसका फ़ायदा उठाया बट स्पोर्ट्स हेल ने। तो अभी तक का जो सूरत हाल है, 6 ओवर और 4 गेंदों का गेम हो चुकी है। 45 पर 2 विकेटें गंवाई है राइजिंग स्टार शांगस ने। शुक्रिया जीएम भट्ट, शुक्रिया जीएम भट्ट, शारिक यूसुफ, शुक्रिया शारिक यूसुफ, शेख जाहिद, इशफाक लोन। पांचवी मरतबा चले बॉलर अशफाक अहमद। आहिस्ता आहिस्ता फारूक अहमद नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अभी 9 रन बनाकर खेल रहे हैं। चले आहिस्ता आहिस्ता अंपायर को क्रॉस किया। अच्छी गेंद, उठती हुई गेंद, वहां पर कैचिंग की अपील, लेकिन गेंद शायद आर्म गार्ड से टकराकर कीपर के दस्तानों में। अंपायर का सीधा नकारा वहां पर। स्कोर बदस्तूर 45, 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी मरतबा अशफाक चले, जुबैर अहमद सामना। नए जो खिलाड़ी आए थे जुबैर अहमद है उनका नाम। जुबैर अहमद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, सीधे कीपर के दस्तानों में। ओवर इख्तिताम हुआ। 7 ओवर के इख्तिताम पर राइजिंग स्टार शांगस का स्कोर 45 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। आहिस्ता आहिस्ता उनको यहाँ पर अपनी इनिंग्स बिल्ड करनी होंगी। कोई प्रेशर नहीं लेना होगा। एक आसान सा चेज बन सकता है। अभी 78 गेंदों पर 117 रन चाहिए। 8 विकेटें उनके हाथ में अभी भी है। कुछ अच्छे दिग्गज खिलाड़ी अभी डगआउट में बैठे हुए, उनका आना अभी बाकी है। आठवां ओवर, बॉलर अपने रनअप पे, छोटा सा रनअप, स्पिनर को वहां पर कैप्टन ने बुलाया है। चले आहिस्ता आहिस्ता, अंपायर को क्रॉस किया। गेंद की अच्छी गेंद को निकाला है। बैकवर्ड पॉइंट की जानिब 1 रन लेने का मौका था। 1 रन माफ कीजिए, कोई रन लेने का मौका नहीं था। स्कोर बदस्तूर 45 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। चले बॉलर एक मरतबा फिर
आहिस्ता आहिस्ता अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद को हल्के हाथों से खेला, रन लेने का कोई मौका नहीं, स्कोर बदस्तूर 45 रन। फारूक अहमद जो कि 9 रन बनाकर खेल रहे हैं और जुबैर अहमद जिन्होंने अभी अपना खाता नहीं खोला है। फारूक अहमद सामना करेंगे, गेंद को उठा दिया है लॉन्ग ऑन की जानिब, लॉन्ग ऑफ की जानिब, वहां पर आउट होने का खतरा, लेकिन कैच थोड़ा आगे ही गिरा, वहां पर मिस फील्डिंग, 2 रन लेने का मौका था, 2 रन लिए आसानी के साथ वहां पर बैट्समैन ने, वहां तीसरा रन भी लिया फंबल की वजह से, कुछ शायद फील्डर वहां पर थोड़े से जख्मी हुए हैं डीप फाइन लेंथ पे। इन 3 रनों की मदद के साथ शाइनिंग स्टार राइजिंग स्टार शांगस का मजमूई स्कोर 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर। Fielder is injured there at the deep fine leg region. He was charging to throw the ball back to the wicket keeper, but he had secreted his right foot and he was injured. Physio has been called there to have a look on his injury now. I think the substitute fielder has been called in. He has been sent back to the dugout now. Rising Star Shangas are chasing down the target of 162 runs here. Who is the next to bat? There are a lot of big stars from the Rising Star Shangas. Talking about the squad of Rising Star Shangas, they have Rashid Malik, captain, Amir Firdaus, Farooq Ahmad, Mudassir, Muneeb Nazir, Muzammil Abbas, Rais Gul, Samir Wage, Sartaj Ahmad, Saeed Talib, Zubair Ahmad. This is the squad for Rising Star Shangas here. Sheikh Zaid, Daru, thank you so much. This time it was a short pitch delivery. Batsman wanted to lift it over the long off. It has taken a leading edge and went straight to the silly point. No run results. Best Friends 11 Tangberg versus Shine Support Chandrahama match is going on, and that is also a very, very big match. Oh, bowled him, what a ball, terrific ball, and whipped out the wickets there. Fantastic bowling there from this youngster, and he has got another wicket here. Another one bite is the dust here. Rais Ahmad, who is next to bat, thank you so much for joining me. Ubaid Urfi, the highest ever team total here in the S&W Memorial Ground is 245 in 2018 as per the statistics given by Ubaid Urfi, one of the great scorer of this tournament. Friends 11 Tangberg versus Shine Support Chandrama. Friends 11 Tangberg 140 for the loss of 3 wickets after the end of 15 overs. So match is going on at CWAP ground. Rais Muneeb lone yet to bat. No, he is out. Rais, he is out. Muneeb left. He was in a terrific form. Awan Umar. What's क्या करूँ? क्या करूँ ताई? किस बिल किस? समझिए इस में से बस थोड़ा बड़ी लेट है. वला इस इच्छा में इस चला इसमें वला ये करा. वाली लगी थी ना दो करे सुन जवाब से. Rashid Malik is the best batsman to watch. Let's have where is this playground? Playground is at S&W Memorial Ground, Chandrahama Patan. Sharik Yusuf to go. Rais Ahmad Team Kyakur. And let's have a look on that thing as well. New batsman is coming down the middle there. Hello. ठीक है जी, throw. Another batsman walks down the middle there.
But supports Hale are in a charge now. Farooq has been requested to stay there. You can turn the game and you can turn the cards as well. Sheikh Zahid says this. Kindly do this to share the page more and more, so we will be connecting more people on Kashmir Sports Watch. Meanwhile, another batsman walks down the middle. He has given him a lot of width there, and the ball was wide outside the off-stump. Umpire declares it a wide ball. One more to the addition now. Score moves up to now 49 for the loss of 2 wickets. Cuts the ball and finds the gap, but fielder is there in the deep of point. Protection in the deep, but cannot stop the batsman from taking a run there. One more run has been taken. Walaikum Salam. He's watching from Ganderbal. He's also one of the beautiful districts. Muhammad Yasin, thank you so much. And that was a shot in length, and batsman could not retaliate it. No run results. 50 for the loss of 3. 9th over is in progress. The current run rate is 6 and the required run rate is mounting up. It is 9.60. Nudges the ball down the leg side for a dot ball now. Another dot ball. There is no change in the scoreboard. It is 50 for the loss of 3 wickets. Oh, that's a big appeal, and noise has come to my ears as well. It echoed a lot. Rising Star Shangas are in a trouble now. Their wickets are falling like pack of cards, and they are not holding their nerves. None of the batsmen have shown so far any application on the pitch. Another wicket bites the dust. Is walking back to the dugout now. It is 50 for the loss of 4 wickets. 8.4 overs have been bowled so far. The current run rate is 5.77 now, and the required run rate is mounting up. It is 9.88. Zubair has been sent back to the dugout now. Rising Star Shangas coming around 120 kilometers away from this ground, from South Kashmir district Anantnag. They have a very strong team. Lot of people have commented on the Kashmir Sports Watch that they can surely chase down the target of even 200 runs, but today they are not looking in a good touch, and they have been brought into the shackles now. Width is not being offered. The line and length from the bowlers is quite disciplined. Another batsman walks down the middle. Rais Gul. Rais Gul is coming. He's a very tall batsman. His height is around 6 feet. Lean, tall. Let's wait how he will be delivering services for Rising Star Shangas here. Farooq Ahmad is not out on 13. He has faced 18 balls. Rahi, one of the best players. Rahi, thank you so much for Junaid Bashir. your compliment to Junaid. Thank you. Bowler comes right on the stump. Ishfaq from the school end. Slip has been removed now. There is backward of point. We have a cover. Long off. Long on. Deep mid wicket. And there's a big fumble that will give opportunity to the batsman to have another run there, but no run results. Only 1 run has been taken there. Score goes up to now 51 for the loss of 4 wickets. Over number 9th is in progress. Bowler comes. Oh, there's a fuller one. Beats him completely. It was well taken behind the wickets, no run results. So Abid, the current run rate is 5.67 and the required run rate is 10.09. Now the Kashmir, on the Kashmir Sports Watch, you are watching the chase of Rising Star Shangas. Now it looks like, it's a big collapse on the top of the order, Abid, and 51 for the loss of 4 wickets. The trump card, the top order batsman have already been sent back to the dugout. So it looks like now the pressure is directly coming on Rising Star Shangas now, Abid. जी सीपी, अगर मैं बात करूं तो अभी
रईस गुल क्रीज पे जो शायद खेल रहे हैं अभी, उनका मैं देख रहा था फेसबुक कमेंट्स में, रईस गुल की काफ़ी अच्छी तारीफ हो रही है साउथ कश्मीर से हमें। तो अभी तक का सूरत हाल ये है कि जो मैच में बट सपोर्ट्स खेल ने पूरी तरह से अब पकड़ बना कर रखी है। कुछ बिखरी हुई थी यहाँ पर राइजिंग स्टार शांगस की टीम। चले बॉलर आहिस्ता आहिस्ता अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद। डॉक्टर मुदस्सिर शुक्रिया, ओमान से देख रहे हैं, शुक्रिया, ओमान से देख रहे हैं, ओमान से देख रहे हैं, ओमान से हमें अभी वॉच कर रहे हैं डॉक्टर मंसूर, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया डॉक्टर मुदस्सिर, डॉक्टर मुदस्सिर खान इजहार शुक्रिया, खान निसार शुक्रिया आपका भी। तीसरी मर्तबा सुहेल, चले आहिस्ता आहिस्ता अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद को गाइड किया, वहाँ सेकंड स्लिप की जानिब, रन लेने का कोई मौका नहीं। सिकर बदस्तूर 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फारूक अहमद की अगर हम बात करें तो फारूक अहमद ने 20 गेंदों पर 13 रन बनाए हैं। एजाज अहमद, वेयर इज दिस प्लेग्राउंड? SNW मेमोरियल ग्राउंड 5 किलोमीटर जो पट्टन मेंट, वहाँ पर लंबा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद कीपर के फील्डर के दस्तानों में कैच आउट हुए वहां पर फारूक अहमद। मैंने पहले ही आपको कहा था कि फारूक अहमद कुछ 21 गेंदों पर 13 रन किए थे अभी तक फारूक अहमद ने। काफी खराब प्रदर्शन वहां पर बैट्समैन का। तो 5वां झटका लगता हुआ राइजिंग स्टार शांगस को। तो मैं कह रहा था कि SNW ग्राउंड हैदरबेग से 3 किलोमीटर, अगर मैन टाउन पटन से तो 5 किलोमीटर। नेशनल हाईवे से जब हम श्रीनगर से आते हैं तो राइट साइड में, बारामूला से तो लेफ्ट साइड में। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। जो कि SNW मेमोरियल ग्राउंड है, ये 3 किलोमीटर नेशनल हैदरबेग से दूर है और 5 किलोमीटर मैन टाउन पटन से है। तो जो यहाँ पर हमारा कॉलेज ग्राउंड है पटन में, वहाँ तक हमारा 6 किलोमीटर का फासला है। तो रईस गुल को भेज दिया गया है। अगले बल्लेबाज जो अब आने वाले हैं उनका हम इंतज़ार कर रहे हैं। अगले बल्लेबाज भी आ चुके हैं, तो अभी हम जानना चाहेंगे कि किसको भेजा गया। रईस गुल के बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़े खिलाड़ी है, बड़े हिटर है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिटिंग करते हैं। 52 रन हो चुके हैं 5 खिलाड़ी। आधी टीम को वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया गया है यहाँ पर जो है बट सपोर्ट्स हेल ने राइजिंग स्टार को। तो समीर वागे आगे है अगले बल्लेबाज। तो समीर वागे का हम इंतज़ार कर रहे थे कब आएंगे वहाँ पे, तो वो भी आ चुके हैं। तो इस वक्त जो दोनों बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद है, एक तरफ से समीर वागे तो दूसरी तरफ से है RG, दैट इज़ रईस गुल। तो बल्लेबाज इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पर सोहेल की अगली गेंद का। अच्छी गेंद डाली, पेडुस पे गेंद डाली थी लेकिन लेग स्टंप काफ़ी मिस कर रही थी और रन आउट होने का खतरा भी था वहाँ पर। इस तरह से दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन मुकम्मल किया। इस रन के साथ यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर में इजाफा किया। स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन 5 विकेट के नुकसान पे। जो इस वक्त मौजूदा रन रेट है वो है 5.30 और जो आने वाली और जो पूछने वाली रन रेट है वो है 10.90 के अवसर से रन बनाने होंगे। तो काफ़ी मुश्किलात में है इस वक्त पूरी टीम राइजिंग स्टार शांगस। एक तो उनको रन्स भी बनाने होंगे, तो दूसरी छोर से उनको अपने विकेट्स भी बचाने पड़ेंगे। उनके विकेट्स लगातार गिरते गए और ताश के पत्तों की तरह उनकी बैटिंग जो है वो आज बिखर गई और कुछ खास एतमाद उनके बल्लेबाजों ने नहीं दिखाया और काफ़ी बिखरी हुई टीम इस वक्त नज़र आ रही है। हालांकि मुनीर जो है काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में लग रहे थे, कुछ अच्छे शॉट्स मुनीर ने ज़रूर खेले थे, लेकिन उन्होंने केवल ज़्यादा रन बतौर नहीं अपनी टीम से। तो पहला झटका लगा था 13 पे, दूसरा 43 पे, चौथा 48 पे, पांचवा 50 पे और छठा विकेट जो गिरा है वो है 52 रन पे। तो इस वक्त जो हालात है, इस वक्त पूरी शांगस राइजिंग स्टार की टीम जो है वो काफ़ी ख़राब है। अगर बात की जाएगी पिछले 3 विकेट्स की, केवल 4 रन पे आबिद पिछले 3 विकेट आउट हो चुके हैं। केवल एक अच्छी लंबी पार्टनरशिप हुई थी वहाँ पर तकरीबन 32 रनों की, तो उसके बाद कोई अच्छी पार्टनरशिप नहीं लगी है। 3 विकेट खोए हैं 4 रन पे। तो इस तरह आपको साफ जाहिर हो रहा है यहाँ पर शांगस राइजिंग स्टार की तरफ से कि उन्होंने किस तरह का खेल का मुजाहरा यहाँ पर आज किया। आगे जी मोहम्मद शफी अगर बात करें तो अभी इस वक्त का सूरत हाल ये है कि बट सपोर्ट्स हेल पूरी तरह से इस वक्त पकड़ बनाए हुए है मैच में। चले बॉलर अच्छी गेंद को निकाल दिया है वहाँ पर। मुनीब लेफ्टी आउट, मुनीब लेफ्टी आउट हो चुके हैं। मुनीर लेफ्टी आउट हो चुके हैं।
इस वक्त अशफाक रईस गुल इस वक्त क्रीज पे हैं और समीर वगे। अशफाक इसलैंड की गेंद, अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। इस वाइड की मदद के साथ बट स्पोर्ट्स हेल का स्कोर, राइजिंग स्टार सांगस का स्कोर 55 रन 5 विकेट के नुकसान पर। फंस चुकी है यहाँ पर, किसी फील्डर को एक अच्छा रोल निभाना होगा। गेंद को निकाल दिया है, अच्छा स्ट्रोक वहाँ पर फ्लिक कर दिया बैट्समैन रईस गुल ने। डीप स्क्वेयर की जानिब 1 रन लेने का मौका था, 1 रन लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद के साथ राइजिंग स्टार स्ट्रांगस का स्कोर 56 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो मेरे काफ़ी दोस्त देख रहे हैं इस वक्त ग्राउंड में भी मैच लाइव ऑन कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच। आई प्रो के जो उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त कैच यहाँ पर पकड़ लिया है, कमाल की फील्डिंग। हालांकि इससे पहले काफ़ी आसानी से वो कैच छोड़ दिया था तौफीक ने, लेकिन इस बार बहुत कमाल का कैच पकड़ा। शमीम मेरे दोस्त वहाँ पर मैच देख रहे हैं, मोहम्मद अकबर वहाँ पर मैच देख रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है, डॉक्टर सदीक भी मैच देख रहे हैं, डॉक्टर नईम भी मैच देख रहे हैं, और शौकत मैच देख रहे हैं, बड़े बड़े जो हमारे सितारे हैं सारे लोग इस वक्त मैच देख रहे हैं। तो इस तरह से जो राइजिंग स्टार जो शांगस है, इनकी टीम पूरी बिखरी हुई नज़र आ रही है। तो इस तरह से उन्होंने अब क्या किया है, उनके 5 के अलावा बल्कि 6 खिलाड़ी अब आउट हो चुके हैं और उनका स्कोर जो है वो है 57 रन। अगले बल्लेबाज आ रहे हैं। मुनीब नज़ीर ने 12 रन बनाए, 7 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगाए। आमिर फिरदौस ने 24 रन बनाए, 19 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 1 छक्का लगाया। फारूक ने 13 रन बनाए, 22 गेंदों का सामना किया। काफ़ी समय लिया था फारूक ने, लेकिन आखिरकार उनका विकेट भी उखाड़ा गया। आमिर ठीक 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 ठीक। उसके बाद अगर जुबैर की बात करेंगे, उन्होंने 4 गेंदों का सामना किया, कोई रन नहीं बनाया, तो 0 पे आउट हुए। जुबैर के बाद राशिद मलिक आए जो कि 0 पे आउट हुए, 4 गेंदों का सामना किया। रईस गुल नॉट आउट है और अगले बल्लेबाज जो है समीर वगे, वो भी कुछ खास नहीं किया उन्होंने केवल 1 रन बनाया, 2 गेंदों का सामना किया। रियाज अहमद ने मेरा वीडियो शेयर किया है, बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई आपका, आपने हमेशा एक अच्छा सपोर्ट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच का ये वीडियो शेयर करने के लिए। जितने भी लोग देख रहे हैं वो पेज को शेयर कर सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ जाएंगे और हम आपको हमेशा से यहाँ पर SNW की लाइव कवरेज देंगे। तो इस तरह चंद्रामा का भी मैच चल रहा है, वहाँ पर शाहीन स्पोर्ट्स वर्सेस फ्रंट स्टगमर्ग के बीच पलालन के CWAP ग्राउंड में। तो अभी उस मैच का फैसला नहीं हुआ, क्योंकि अभी चंद्रामा को चेज़ करना होगा। अगर आपको पता है उस मैच के बारे में तो आप कमेंट्स में बताएंगे कि फ्रंट्स की टीम जो है टंगमर्ग की, उन्होंने कितना टारगेट दिया चंद्रामा शाहीन्स को। बहरहाल अगले बल्लेबाज आ चुके हैं रईस गुल के बाद। इस गेंद को वहाँ पर खेल दिया खूबसूरत अंदाज में, लेकिन फील्डर मौजूद, काफ़ी करारा शॉट था। सईद तालिब आ गए हैं और सईद तालिब यहाँ पर जो है वो क्रीज पे मौजूद है, उनका साथ दे रहे हैं रईस गुल ने अभी तक 5 रन्स बनाए हैं, 7 गेंदों का सामना किया। अब सईद तालिब जो है वो नॉट आउट है, 1 रन बना के अब सामना करेंगे अगली गेंद का। इनिंग्स का ये 12वां ओवर शुरू होने वाला है। तो अगर बात करेंगे यहाँ पर चेज़ की आबे, तो जो है पूरी टीम राइजिंग स्टार शांगस जो है कुछ खास अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं दी है। लगातार ताश के पत्तों की तरह उनकी विकेट्स बिखरे गए और अगले गेंदबाज आए। अच्छी गेंद डाली थी, लेकिन हालांकि गेंद जो है काफ़ी ज़्यादा इसको दिशा दी और गेंद को वहाँ पर भेज दिया है सीमा रेखा से बाहर। तालिब के बल्ले से निकलता हुआ ये चमचमाता हुआ छक्का, और गेंद गई वहाँ पर हवाई यात्रा के लिए बहुत ही बड़ा छक्का। कमाल का शॉट लग गया यहाँ पर जो तालिब है उनके बल्ले से, बहुत ही ज़बरदस्त और आले दर्जे का शॉट। सारे फील्डर दर्शक बन के वहाँ पर देख रहे थे कि गेंद वहाँ पर कहाँ पर लैंड करेगी। सईद तालिब के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का। अच्छी गेंद डाली थी वहाँ पर, अच्छा कमबैक किया बॉलर ने और किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं।
स्कोर बदस्तूर यहाँ पर 58 रन 6 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंद वहाँ पर इस गेंद को गाइड किया है। एक बार फिर बहुत ही खतरा बन सकता है और रन आउट। बहुत खराब क्रिकेट है जहाँ पर जो है राइजिंग स्टार शांगस ने खेल दिया है। बहुत ही बड़े खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, वो है तालिब। इस बार आहिस्ता आहिस्ता वापस जाते हुए वहां पर पवेलियन की ओर। तो इस तरह से आप आबिद बताएं कि जो रनिंग बिटवीन द विकेट से वो काफ़ी ख़राब रही है। इस तरह की रनिंग आप अगर करोगे तो यकीनी तौर पे बड़े बड़े झटके लग जाएंगे। जी मोहम्मद शफी, जो राइजिंग स्टार शांगस की टीम एक क्लब जिनका स्टैंडर्ड क्लब के हिस्से से यहाँ खेलने के लिए आए हैं, मुझे नहीं लगता उस स्टैंडर्ड से उस पे खरे उतरे हैं। जिस तरह की रनिंग उनकी रही है, जिस तरह की ये बैटिंग पे आए, पार्टनरशिप ना कर सके, अब लग रहा है कि अब मैच में वापसी इनकी करना नामुमकिन जैसी है। 80-20 अगर विन प्रेडिक्शन की बात करी तो मेरे हिसाब से 80-20 की है। 80% अभी लग रहा है मुझे कि 80% विन प्रेडिक्शन है, 80% बट सपोर्ट्स। हम फेसबुक पे शुक्रिया शेख जाहिद, शुक्रिया मलिक आमिर। इरफान आए, गेंद की अच्छी गेंद सीधे पेड़ पर लगी, लेकिन लेग स्टंप से बाहर, कोई अपील नहीं वहां पर। इससे पहले जो रन आउट शहीद तालिब हुए थे, कोई अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दो इनके माबाइन नहीं थी। बिना देखे बिना कॉल किए निकल आए क्रीज से, गेंद काफ़ी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। इस एक रन की मदद के साथ 65 पहुंचा है स्कोर राइजिंग स्टार शांगस का। बॉलर चले, अच्छी गेंद को उठा दिया है लॉन्ग ऑफ की जानिब। एक रन लेने का मौका था, वहां पर फील्डर ने गेंद को आसानी के साथ फील्ड किया। इस एक रन की मदद के साथ राइजिंग स्टार शांगस का स्कोर 67 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 12वें ओवर का खेल जारी। 5वीं मरतबा इरफान चले, आहिस्ता आहिस्ता अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की शॉर्ट पिच गेंद को निकाल दिया पॉइंट की जानिब, वहां पर कवर की जानिब, गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं, स्कोर बदस्तूर 67 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 12 ओवर के इख्तिताम पर राइजिंग स्टार शांगस का स्कोर 67 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 162 रन का लक्ष्य दिया है राइजिंग स्टार शांगस को यहाँ पर बट सपोर्ट्स ने। अभी तक का जो सूरत हाल है, बट सपोर्ट्स ने काफ़ी अच्छी खेल का मुजाहरा किया है यहाँ पर। सरताज अहमद आए हैं खेलने के लिए राइजिंग स्टार के डगआउट से। समीर वगे जो कि आउट हुए थे, सईद तालिब, रईस गुल अभी क्रीज पर मौजूद। चले, बॉलर आहिस्ता आहिस्ता अंपायर को क्रॉस किया, गेंद को निकाल दिया है फाइन लेग की जानिब। वहां पर फील्डर गेंद के पीछे दौड़ते हुए कीपर गेंद को फील्ड किया। एक रन लेने का मौका था, एक रन लिया आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने। वहां पर इस एक रन की मदद के साथ 67 पहुंचा है स्कोर राइजिंग स्टार शांगस का। यहां से एक खिलाड़ी को जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा। हर ओवर में आपको एक छक्का एक चौकी की ज़रूरत है, तभी आप अपनी टीम को फतह से हमकिनार कर सकते हैं। सरताज सामना करेंगे इरफान का। इरफान चले, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद, अंदर आती हुई गेंद, वहां पर रन आउट होने का खतरा। ड्रैग ट्रीट लगा, लेकिन फंबल की वजह से अब रन आउट होने का खतरा। और ये देखते हैं आउट। काफी मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द विकेट्स। आठवां झटका लगता हुआ वहां पर सरताज के रूप में।
काफी खराब प्रदर्शन वहां पर राइजिंग स्टार शांगस के दरमियान। आठवां झटका लगता हुआ वहां पर राइजिंग स्टार शांगस को। अब यहां से मुझे लग रहा है कि वापसी करना नामुमकिन के बराबर है। पूरी तरह से हावी हो चुकी है बट सपोर्ट्स हेल। कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पे आप अभी लाइव बट सपोर्ट्स हेल और राइजिंग स्टार शांगस के माबाइन मैच जारी SNW मेमोरियल के ग्राउंड से। अभी तक का सूरत हाल पूरी तरह से छाई हुई है बट सपोर्ट्स हेल। बॉलर आहिस्ता आहिस्ता अपने रन पे जाते हुए। काफी निराश इस वक्त राइजिंग स्टार शांगस के दर्शक, जो कि हमें फेसबुक पे इन पे कमेंट कर रहे हैं। बॉलर चले मलिक फैसल सामना करेंगे बॉलर इरफान का। चले अच्छी गेंद, अंदर आती हुई गेंद को दिफाई अंदाज से खेला। रन बनाने का कोई मौका नहीं, स्कोर बदस्तूर। सड़सठ रन। बॉलर एक मरतबा फिर चले आहिस्ता आहिस्ता अंपायर को क्रॉस किया। गेंद की वहां पर कैच होने का खतरा है। इसी के साथ कैच आउट हो गए वहां पर बैट्समैन सरताज। बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौट रहे हैं सरताज। पूरी तरह से बिखर चुकी है अब टीम राइजिंग स्टार शांगस की। 9वां झटका लगता हुआ मुजम्मिल अब्बास पवेलियन का रुख करते हुए आहिस्ता आहिस्ता पवेलियन की तरफ जाते हुए। आखिरी जोड़ी पिच पे है। काफी खराब प्रदर्शन यहां पर राइजिंग स्टार शांगस के। मगर मैच तेरहवें ओवर का खेल जारी। उम्दा खेल का मुजाहरा किया है यहाँ पर बट सपोर्ट्स हेल ने। काफ़ी अच्छी बॉलिंग, टाइम टू टाइम उन्होंने चेंज बहुत अच्छी की हुई है। काफ़ी अच्छी बॉलिंग। एक विकेट की ज़रूरत है इस शानदार जीत के लिए बट सपोर्ट्स हेल के लिए। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद हुसैन। जी नज़र। आज 5 साल के बाद फिर से कमेंट्री के फ़राइज़ अंजाम देते हुए SNW मेमोरियल ब्यूटीफुल इस खूबसूरत ग्राउंड से आपको बराह रास्त बट सपोर्ट्स हेल और राइजिंग स्टार शांगस का अकाउंट चलावा अकाउंट वहाँ पर हल्की सी अपील की थी, लेकिन नकारा वहाँ पर अंपायर ने सीधे कीपर के दस्तानों में। मैच मतलब जल्दी बट सपोर्ट्स हेल को एक विकेट की ज़रूरत वहाँ पर एक शानदार जीत के लिए। बॉलर चले आहिस्ता आहिस्ता अंपायर को क्रॉस किया। गेंद की अच्छी गेंद, अंदर आती हुई गेंद, तेज तरारा गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में। रन लेने का कोई मौका नहीं। ओवर इख्तिताम हुआ। 13 ओवर के इख्तिताम पर राइजिंग स्टार शांगस का स्कोर 67 रन। 9 विकेट के 9 खिलाड़ी उनके पवेलियन लौट चुके हैं।
आखिरी जोड़ी इस वक्त विकेट पर। बॉलर अपने रन पर चले, आहिस्ता आहिस्ता अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की स्लोवर गेंद वहां पर बॉलर ने डाली, सीधे सेकंड स्लिप की हाथ में, रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर बदस्तूर 67 रन 9 विकेट के नुकसान पर। बॉलर एक मरतबा फिर चले, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद को निकाल दिया, फिर से एक मरतबा स्लिप की जानिब, वहां पर फील्डर तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। एक विकेट की जरूरत यहाँ पर बट सपोर्ट्स हिल को जीत के लिए। अच्छी जीत, अच्छे खेल का मुजाहरा किया यहाँ पर बट सपोर्ट्स हिल ने। स्लोवर गेंद को धकेल दिया है फाइनल की जानिब, रन लेने का मौका, एक रन आसानी के साथ दिया वहां पर दोनों बैट्समैनों ने। यहाँ से जीतना राइजिंग स्टार शांगस के लिए नामुमकिन के बराबर है, कोई मिरेकल ही इनको जितवा सकता है। बॉलर चले, आहिस्ता आहिस्ता अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की शॉर्ट पिच, गेंद को निकाला, वहां कैच होने का खतरा, लेकिन पहले ही गिरी बॉल। रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर बदस्तूर 68 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अंपायर, बॉलर चले, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद अगर आगे निकल कर खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में, रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर बदस्तूर 68 रन 9 विकेट के नुकसान पर। पूरी तरह से बिखर गई आज राइजिंग स्टार शांगस की टीम। स्लोवर गेंद को निकाला है लॉन्ग ऑफ की जानिब, रन लेने का मौका था, एक रन लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस एक रन की मदद के साथ 69 पहुंचा है स्कोर राइजिंग स्टार शांगस का। मोहम्मद शफीक, आपको क्या लगता है कहां पर चूक हुई राइजिंग स्टार शांगस की? अगरचे हम फेसबुक लाइव पे भी देख रहे थे, लोगों का भी हमें काफ़ी कॉल्स आए कि एक अच्छा क्लब खेल रहा है, इनकी बैटिंग डेप्थ है, 200 भी चेज कर सकते हैं, लेकिन मुझे कहीं दिखा नहीं, जैसे कि मुनीब, रईस गुल, सरताज, इनमें कोई वो चेज करने का कोई एफर्ट ही नहीं इन्होंने लगाया। आपको क्या लगा कहाँ गलती हुई इनकी? स्कोर ज़्यादा था या इनसे ही कोई गलती हुई? नहीं, स्कोर ज़्यादा नहीं था, कुछ बड़ा स्कोर नहीं था, बड़ा लक्ष्य नहीं था उनके सामने, लेकिन जो कैचिंग की है बट सपोर्ट्स हिल ने वो बहुत ही आला दर्जे की कैचिंग थी। खासकर मुझे लगता है कि जब वो रन आउट हुए थे खिलाड़ी, तब से पूरी टीम बिखर गई। 3 रन आउट्स हुई है, आपको पता चलेगा कि कितनी खराबी हुई है यहाँ पर, मिसअंडरस्टैंडिंग थी विकेटों के बीच। उसके अलावा मुझे लगता है कि जो ही मुनीब लेफ्टी जो बड़े सितारे हैं टीम में, जो ही उनका विकेट वहाँ पर हासिल किया है बट सपोर्ट्स हिल ने, तब से पूरी टीम बिखर गई है। हालांकि जो उनकी 162 रन का जो लक्ष्य है, चेजेबल है, काफ़ी ज़बरदस्त सपोर्ट करता है ये पूरा जो है विकेट है, वो पूरा सपोर्ट करता है सारे बैट्समैनों को यहाँ पे। अगर मैं आपको बताऊं मोहम्मद शफी, देखने के लायक ये बात थी कि वहां पर वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से, कैच भी ड्रॉप किया था वहां पर इनके कैप्टन ने स्लिप में, लेकिन फिर भी टीम वापस ना आ सकी। पूरी तरह से हावी हो चुकी है अभी बट सपोर्ट्स हिल की टीम। इस एक रन की मदद के साथ 70 पहुंचा है स्कोर राइजिंग स्टार शांगस का। फिर एक मरतबा बॉलर लंबे रन अप के साथ आहिस्ता आहिस्ता अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में, रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर बदस्तूर 70 रन। यहाँ से आप टेल एंडर पे कोई उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि ये पता से इनकरार कर सकते हैं अपनी टीम को। इस वक्त आप बराह रास्त फेसबुक लाइव पे बट सपोर्ट्स हिल और राइजिंग स्टार शांगस का मैच देख रहे हैं। 34 गेंदों पे मजीद 92 रन चाहिए राइजिंग स्टार शांगस को। उनके पास बस आखिरी जोड़ी खेल रही है अभी मुदस्सिर, जो कि अभी उन्होंने अपना खाता भी नहीं खोला है। आरजे की बात करें, रईस गुल, तो उन्होंने 7 रन बनाए हैं। बॉलर चले, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अज्जू बॉलिंग कर रहे, वाइड का इशारा, वहां पर नो बॉल का इशारा और फ्री हिट। बॉलर अज्जू हल्के से रनअप के साथ
चले आहिस्ता आहिस्ता, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद को उठा दिया है, वहां पर फ्री हिट पे कैच होने का खतरा था, लेकिन थोड़ी सी दूर फील्डर से रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर बदस्तूर 70 रन 9 विकेट के नुकसान पर। एक विकेट की जरूरत बट स्पोर्ट्स हेल को ये मैच जीतने के लिए। अज्जू अपने ओवर की तीसरी गेंद करेंगे। चले आहिस्ता आहिस्ता, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद को वहां पर जबरदस्त फील्डिंग फर्स्ट स्लिप में कैप्टन ने की, बहुत अच्छी फील्डिंग कैप्टन ने की। अपनी टीम को 4 रन बचाए वहां पर कैप्टन ने। पांचवी मर्तबा अज्जू, चले अंपायर को क्रॉस किया, स्लोवर गेंद कंप्लीटली मिस की वहां पर बैट्समैन ने। स्कोर बदस्तूर 72 रन 9 विकेट के नुकसान पर। पूरी बिखरी हुई है टीम राइजिंग स्टार शांग्स की, कुछ खास नहीं कर सके इनके बैट्समैन जो आए थे। आखिरी मर्तबा अज्जू, चले अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद को निकाला है वहां पर पॉइंट की जानिब, रन लेने का कोई मौका नहीं। ओवर की इख्तिताम में 14 ओवर के इख्तिताम पर राइजिंग स्टार शांगस का स्कोर 72 रन 9 विकेट के नुकसान पर। थैंक यू मीर जहांगीर, थैंक यू इफाम नियाज, शुक्रिया बटकैफ। स्कोर 72 रन, अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद, वहाँ पर मिस फील्डिंग थोड़ी सी बॉलर से, लेकिन बैट्समैन कुछ इंटरेस्टेड नहीं थे रन लेने में। स्कोर बदस्तूर 72 रन। चले फ्लाइटेड गेंद सीधे कवर की जानिब खेला, रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर बदस्तूर 72 रन 9 विकेट के नुकसान पर। आखिरी विकेट की तलाश इस वक्त बट स्पोर्ट्स खेल के लिए। इरफान अहमद छोटे से रनअप के साथ आए, अच्छी गेंद को धकेल दिया मिड ऑन की जानिब, डीप मिड ऑन से वहां पर फील्डर आए हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन लेने का मौका था, 1 रन लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी के साथ। इस 1 रन की मदद के साथ राइजिंग स्टार शांगस का स्कोर 73 रन 9 विकेट के नुकसान पर। गेंद को उठा दिया, वहां पर कैच होने का खतरा, लेकिन कोई फील्डर वहां नहीं। गेंद आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्री की तरफ, कीपर ने गेंद को फील्ड किया, 2 रन लेने का मौका था, आसानी के साथ बैट्समैन ने वहां पर 2 रन लिए। इरफान आखिरी मर्तबा, छोटे से रनअप के साथ इरफान चले, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद, अंदर आती हुई गेंद को धकेल दिया सेकंड स्लिप की जानिब, रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर बदस्तूर 74 रन 9 विकेट के नुकसान पर। रईस गुल खेल रहे हैं 8 रन पर और मुदस्सिर खेल रहे 1 रन पर। अच्छी गेंद, तेज गेंद, पूरी तरह से चूके वहां पर बैट्समैन। ओवर इख्तिताम हुआ 16 ओवर के इख्तिताम पर। राइजिंग स्टार शांगस का स्कोर 74 रन 9 विकेट के नुकसान पर। उनके 9 खिलाड़ी पवेलियन में पहुंच चुके हैं। 24 गेंदों पर अब 88 रन चाहिए राइजिंग स्टार शांगस को, नामुमकिन। बॉलर चले, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद, स्लोवर गेंद, वहां पर पूरी तरह से बॉल और बैट का कोई राबिता नहीं। गेंद कीपर के दस्तानों में। सिकर बदस्तूर 74 रन। चले, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की आउट होने का खतरा, इसी के साथ सिटम और बट सपोर्ट्स हेल ने यह मैच जीत लिया है। वहां पर मुदस्सिर को सिटम किया है कीपर ने जहांगीर अहमद की विकेट पे। तो इस तरह से राइजिंग स्टार शांगस की इनिंग्स का खात्मा। बट सपोर्ट्स हेल ने यह मैच 87 रनों से जीत लिया है। एक 162 रन का लक्ष्य पीछा करती थी बट सपोर्ट्स राइजिंग स्टार शांगस, लेकिन कहीं पर भी नहीं दिखा।
कि वो इस स्कोर को आसानी के साथ चेज करते। थैंक यू रईस अहमद। खुशी से झूम रहे हैं इस वक्त बट सपोर्ट्स के प्लेयर, आहिस्ता आहिस्ता डग आउट की तरफ जाते हुए। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इरफान अहमद ने तो इस तरह से यहाँ पर जो बट स्पोर्ट्स है उन्होंने मैच जीत लिया है। राइजिंग स्टार शांगस जो है उनको इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच देखने के लिए और हम आपसे इजाज़त मांगते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।